one more information for you. Please switch off your audio and video also. I'm requesting again and again. Please switch off your video and audio. And you can suggest your friends also. Then you can also circulate the message, so more and more students can join this event. Please, you can circulate among the students. And I'm requesting you, please switch off your audio plus video. If you can speak something, then you can write some message in the chat box. अंकुश प्लीज आपकी वीडियो ऑफ करें. Our guest Gaurav Singhal will join this session as soon as possible. Today's our guest Gaurav Singhal. He did his BTech in the year of 2011. Then this is a pass out year 2011 in the branch of electrical engineering. Then he is a RAS officer in the batch of 2017. Now he is holding the post of Rajasthan Account Services. Within 2 minutes or 1 minute, he can join. Our session will be start exact 1 p.m. First 45 minutes, he can explain each and everything. Last 30 minutes, you can ask any question, and we can finish the session sharp 1:15 PM. 1:15 अपन इसको फिनिश कर देंगे. Then first 45 minutes he can explain each and everything. Last 30 minutes you can ask one by one question. Now total 15 participants is there. Then I'm requesting you, you can also suggest your students so that more and more can join this event. This event is basically only for you. Yes, Gaurav Singhal is joined. Gaurav, you can on your video plus audio. Good afternoon, Gaurav. Can you on your video? Yes, sir, my video is on. Yes. Your video is on. How are you? Yeah, I'm fine, sir. How about you, sir? बस I'm also fine. बस कोरोना का चल रहा है. More and more स्टूडेंट्स के लिए ये जो इवेंट स्टार्ट किया है, तो क्या पता मेरा 1 घंटा 1 मिनट कई स्टूडेंट्स के लिए काम आ जाए. तो ये स्टूडेंट्स के क्या बोल रहे हो? अभी तो छुट्टियां चल रही होंगी सर सबकी.
हाँ हाँ, अभी तो 12 जुलाई तक कुछ वो कर रखा है कि स्टूडेंट्स को अभी एंट्री नहीं है, लेकिन हमने फाइनल ईयर जो बीटेक है उनका एग्जाम वगैरह करा के सारा क्लियर कर दिया। अभी हमारा जो अच्छा टाइम चल रहा है वो पीजी का चल रहा है। पीजी में एमएससी हुआ और एमटेक हुआ, उनका डेजर्टेशन वगैरह है, उनको हमने कंटिन्यूसली रख रखा है। दूसरा उनका ऑनलाइन प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, घर अच्छा बैठे अच्छा। बैठे स्टूडेंट प्रेजेंट करेगा। और सिचुएशन ये है कि अभी अलाउ भी नहीं है, गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है कि आप स्टूडेंट्स के लिए ओपन नहीं कर सकते, तब तक वहां से डायरेक्शन नहीं मिल जाती तब तक अपन उसको नहीं कर सकते हैं तो अभी। सर ऐसे जो जो बीटेक वाले हैं उनका एंड सेम हो गया सर, तो एंड हाँ सेम बीटेक एग्जाम वालों का, जी 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 बिल्कुल। एग्जामिनेशन हो हाँ बीटेक वालों का एंड सेम क्लियर हो गया। अभी उनका फाइनल 30 जून मई के आसपास उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया। अच्छा अच्छा। चलो सर, अपनी साइकिल तो बनती है कॉलेज वाली, अदरवाइज क्या क्या? साइकिल रहता है जुलाई से अप्रैल तक का रहता है सर पूरा, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। टाइम अपना पूरा। अ, कल जो सेशन रखा था अपने, एमएनआईटी से ही पास आउट थे 85 to 89 किशन साय। ही इज आईपीएस ऑफिसर, डीआईजी लगे हुए हैं अपने पुलिस हेडक्वार्टर में। कल उन्होंने अच्छे से काफी एक्सप्लेन किया था। अच्छा सर। अभी आप कहाँ पे हो? धौलपुर? जी सर, धौलपुर, जिला परिषद धौलपुर। धौलपुर काफी डेंजरस एरिया है। ये बोलते हैं कि धौलपुर में जिसने नौकरी कर ली, राजस्थान का कोई कोना नहीं है कि उसको फिर समस्या आए। वो बिल्कुल सर, मैंने सुना ही था पहले केवल कि भैया जिसने धौलपुर में नौकरी कर ली जी उस जी। तरह से है। अब मैं एक्चुअली विटनेस कर रहा हूँ उस चीज को कि हम्म। धौलपुर करौली जहाँ पे जो सरवाइव कर गया, आई होप कि वो राजस्थान में सरवाइव कर जाएगा गवर्नमेंट जॉब में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम गौरव। थैंक यू सर। वेलकम गौरव सिंगल। I already told the students uh, you are a RAS officer in the year of 2017. You did BTech in the year of 2011. This is the Yes, completion year in the branch of electrical engineering. Now uh, you are holding Rajasthan Account Services in जी Dholpur. जी। Welcome, Gaurav. This session I'm ended over to you, and you can explain each and everything. I already told you, and I already told the students. You can explain each and everything. You also suggest the hostel days also. You also suggest the college days also, because you did BTech recently, like that 5 years ago or 6 years ago. Then you can explain each and everything to the students. In our session, all students are there: electrical engineering, chemical engineering, architecture student, electrical, all. Those are engineering branches are here in the MNIT, and all students are here. And you can explain. Welcome, Gaurav ji. थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो थैंक्स टू शिवम सर कि जिन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है मुझे आप सबसे इंटरेक्ट करने की। आफ्टर सो मेनी डेज आई वाज लाइक आई एंटर्ड इन एमएनआईटी इन 2007 and then passed out in 2011, so it is after like 9 years I am being introduced to my MNIT family again. So it's feel like coming back home actually। कॉलेज के अपने जो पुराने साथी हैं या अपने जो नए दोस्त हैं उनसे बात करना, उनके इंटरेक्ट करना इज ऑलवेज लाइक गिव सो मच हैप्पीनेस टू मी। सो लेट मी स्टार्ट दिस सेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। आई हैव सम लिटिल प्रेजेंटेशन फॉर यू। Just bear with me for a second. First of all, I would
would like to introduce myself. My name is Gaurav Singhal. I belong to district भरतपुर in राजस्थान. मैंने एक्चुअली बीटेक किया है एमआईटी से 2007 to 11 बैच में. उसके बाद कॉलेज से पास आउट होने के बाद आई टुक प्लेसमेंट फ्रॉम द कॉलेज. एज यू नो कि एकदम प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है अपना और प्लेसमेंट बहुत अच्छे रहते हैं. सो आई डिड जॉइन प्राइवेट सेक्टर एंड वर्क देयर फॉर 1.5 इयर्स. आफ्टर दैट एक डिटैचमेंट सा हो गया यार कि बहुत मोनोटोनस लाइफ चल रही है अपनी, कुछ वही सुबह से शाम की ड्यूटी, एक तरह का काम और कुछ नहीं. सो आई क्विट एंड देन 5-6 months I did nothing. Like I was like कि अब करना क्या है यार, मतलब प्राइवेट सेक्टर में वापस तो नहीं जाना है बिकॉज इट्स टू मोनोटोनस फॉर मी. वही एक तरह का ड्यूटी रहता है, कुछ इनोवेशन नहीं है, कुछ फन नहीं है, कुछ थ्रिल नहीं है. Then I prepared for some competitive examination, government competitive examination, and then I joined a financial institution called NABARD. I worked there in Chandigarh for 2 years, 2016 to 18, and it was quite fun. I got the opportunity to interact with the top bureaucracy in the state. I was working in Chandigarh, and usually I got the opportunity to meet with the finance secretary of Punjab government, Haryana government, and the district administration of Chandigarh. And from there, I got some spark in me that yes, this is the thing which I need. The civil service, the thing is civil service, the administrative job. So I started preparing. I was preparing earlier also, but I didn't have that much conviction to join those services until unless I have seen that how the bureaucracy work, how much impact it creates on the public, on society. जब तक आप अपनी आंखों से देख नहीं लेते कि भैया इम्पैक्ट क्या है इन चीजों का, वो सिस्टम कैसे काम करता है, तब तक आपको वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता अंदर से कि यस मुझे भी वही करना चाहिए. So I prepared for UPSC. I gave mains somehow, and then I appeared for RPSC also. I got selected and I joined the government of Rajasthan in March 2018. And I didn't get through the UPSC examination, but I qualified in RAS and I joined Rajasthan Account Services in 2018. Currently, I am working as a project officer in district Dholpur and working for the rural development area, looking after the rural development area. So this is my whole introduction. Now, coming next, आज का जो सेशन सर ने मुझे बताया है कि एक तरह से आपके लिए एक रास्ता दिखाना है कि हम कॉलेज से जब निकले तो हम किस डायरेक्शन में जाएं. तो अगर हम देखें कॉलेज से निकलने के बाद एक कैरियर प्लानिंग करनी होती है, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं. वी मे गो फॉर हायर स्टडीज लाइक MBA, MTech, PhD, become a research scholar. We may join private sector after taking college placements. We may go for public sector. We may join PSUs, other government jobs like IES, other kind of government jobs are there. Or people who are more enthusiastic, who want to do something of his own or her own, may start their own businesses called startups, family businesses. Few of us want to join the civil services like IAS, IPS, state administrative services, and rest of us जिनको भैया मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, अब तो भैया कॉलेज कर लिया, कुछ नहीं करना, शांति से हिमालय पे जाके तपस्या करनी है.
तो इस तरह के हम कुछ ऑप्शंस देखते हैं अपने कॉलेज के 4 साल बाद। तो सिविल सर्विसेज के लिए सबसे जरूरी जो है, पहली चीज है कि खुद को पहचानो यार, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, आइडेंटिफाई योर टेस्ट कि मुझे चाहिए क्या लाइफ में, एंड देन अकॉर्डिंग टू इट प्लान योर एक्शंस। आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, हायर स्टडीज करें, प्राइवेट सेक्टर में जाएं, पब्लिक सेक्टर में जाएं, स्टार्ट योर बिजनेस, डू एनीथिंग, जस्ट ट्राई टू डू वन थिंग, बी इम्पैक्टफुल। जहां भी जाएं ऐसा काम करें कि आप अपना प्रभाव छोड़ें। आप इसलिए याद नहीं किए जाते यार कि आपका कॉलेज, आप उस कॉलेज से हो, आप ये हो वो, यू आर रिमेम्बर्ड कि आप जहाँ पे हो आप किस तरह का इम्पैक्ट छोड़ते हो लोग। आप कॉलेज में हो, यू डिड वंडर इन कॉलेज, तो आपको कॉलेज के लोग याद करेंगे। आपने कोई जॉब ज्वाइन की, आप कहीं गए, आपने कुछ किया, तो पीपल विल रिमेम्बर बिकॉज ऑफ योर एक्शंस, नॉट बिकॉज की व्हाट यू हैव डन अर्लियर। तो हम सिविल सर्विसेज की बात करें, जो इस सेशन का फोकल पॉइंट है कि भैया वाई सिविल सर्विसेज, क्यों हमें सिविल सर्विसेज ही क्यों ज्वाइन करनी है। देखो जॉब कई तरह के हैं, कई तरह के जॉब है हमारे आगे की लाइफ में सस्टेन करने के लिए, बट हर तरह की जॉब के साथ कुछ ना कुछ प्लस भी है, नेगेटिव भी है। कुछ जॉब है जहाँ पैसा बहुत है, पोजीशन या पावर की कमी है, जहाँ पावर बहुत है वहाँ थोड़ा पैसे की कमी है। मतलब एक बैलेंस्ड जो जॉब है वो हमें लगता है सिविल सर्विसेज हमें दोनों चीजें एक बैलेंस्ड क्वांटिटी में ऑफर करती है। द जर्नी टू प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, जो तैयारी का एक जर्नी है सिविल सर्विसेज का, और एक जो गोल है सिविल सर्विसेज, जो एम है अपना, दिस बोथ आर वंडरफुल थिंग। आप जब इसकी तैयारी करते हो, you enjoy it, it makes you better person, it brings positive changes in your life, and once you become a civil servant, of course you are going to be a better person, and you are going to cherish your life. सेकेंड थिंग, सिविल सर्विस का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। जो भी आप करते हैं अपनी सीट पे बैठ के, जो भी आप डिसीजन लेते हैं, छोटा हो या बड़ा, आपको उसका जो इम्पैक्ट है ना वो रियल टाइम में देखने को मिलता है। जैसे मैं बात करूं कि अब जो कोरोना चैलेंजेस चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी पे इतना प्रेशर है काम करने के लिए, हेल्थ सर्विसेज को हम संभालना पड़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना पड़ रहा है। तो अब छोटे छोटे जो डिसीजन ले रहे हैं ना, कल को जैसे भैया हम डिसीजन लिया राजस्थान गवर्नमेंट ने कि भैया स्टेट से बाहर जाने के लिए आपको पास रिक्वायर्ड होगा। सी स्मॉल डिसीजन ब्रिंग्स टू मेनी इम्पैक्ट ऑन इन सोसाइटी। जो कल को फ्री फ्लो था वो एकदम से रुक गया। आज हम डिसाइड करते हैं कि भैया पास नहीं चाहिए, एंड एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। सो इट ब्रिंग्स ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, जो आपको अदर जॉब में ऑफर नहीं कर पाती अदर जॉब आपको, कि भैया आपके डिसीजन, आपका काम एक पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी इम्पैक्ट लाना है सोसाइटी पे, हैंड टू हैंड रियल टाइम में लेके आए। दूसरी चीज ये ऑफर करता है मल्टी डायरेक्शनल जॉब। आज आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, कल को आप हेल्थ सेक्रेटरी बनते हैं तो हेल्थ से रिलेटेड चीजें आप देख रहे हैं, फूड एंड सिविल सप्लाई में जाते हैं तो भैया खाद्य सुरक्षा देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाते हैं, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, रोड, इन चीज़ों को देख रहे हैं, पॉवर्टी इरेडिकेशन के डिपार्टमेंट में जाते हैं तो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। तो व्हाट डज इट मीन? इट गिव्स यू ए मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच इन योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि यार मैं सुबह उठा 9 बजे और 6 बजे तक मैंने एक ही तरह का काम किया, एक ही सेक्टर में काम किया और बस लाइफ चले जा रही। यहाँ पे नित्य हर नए दिन नए चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं।
थर्ड थिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक बैलेंस है लाइफ में, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, जस्ट बिकॉज दीज आर वेल पेड जॉब्स। एक सिविल सर्वेंट आज की तारीख में जब अपनी स्टार्ट कर रहा है लाइफ, ही गेट्स अराउंड डिसेंट अमाउंट लाइक 70-80,000। इट इज वेल एनफ, इट इज वेल एनफ। द फैसिलिटीज एसोसिएटेड विद दिस सर्विसेज आर टू गुड कि आपको जनरली ऐसा लगता है कि सैलरी आपकी 50-40% ज्यादा खर्च ही नहीं हो पाती है। एंड देन सोशल रिकॉग्निशन तो है ही, सोसाइटी में आपको रेस्पेक्ट मिलता है, लोग आपको आपके काम से जानते हैं, आपके पद से जानते हैं। अब चाहिए क्या है, अब सिविल सर्विसेज में इतनी सारी चीजें हैं भैया, सब कुछ अच्छा अच्छा ही है, तो कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू जॉइन सिविल सर्विसेज? जैसे कहते हैं ना, मिल्खा सिंह ने कहा था कि भैया हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी, अगर आप ये तीन चीजें अपने अंदर इम्बाइब कर पाते हैं ना, देन स्काई इज द लिमिट फॉर यू। अगर आप मेहनत करने की ठान लें, लगन हो किसी चीज को पाने की, और अपने गोल के प्रति ईमानदारी हो, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। आगे मैं बात करूंगा सिविल सर्विस के बारे में, तो देखो बेसिक सी चीजें आप लोग ये सब तो जानते हैं कि सिविल सर्विस होती क्या है। आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, आपके एरिया में कलेक्टर होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी होते हैं, एसडीएम्स होते हैं, डीएसपी होते हैं, सेंट्रल लेवल पे आपके सेक्रेटरीज होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यू ऑल गाइस नो कि व्हाई, व्हाट आर दीस सर्विसेज। और दूसरा सवाल आता है कि सिविल सर्विसेज ही क्यों, तो उसके जवाब मैं आपको पिछली स्लाइड में दे चुका हूं कि भैया इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब तीसरी चीज आती है, हमने ये जान लिया कि भैया सिविल सर्विसेज क्या है और क्यों है, तो बताओ भैया कैसे ज्वाइन करना है, हाउ टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज। देखो किसी चीज को अगर एक्सेल करना है ना, योर एग्जामिनेशन लाइक योर एनिमीज। आप जो भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं ना, इट इज लाइक योर एनिमी एंड यू हैव टू विन इट ओवर। आपको जीतना है उसे। और आप जीत कैसे पाओगे अपने एनिमी से? व्हेन यू नो द स्ट्रेंथ ऑफ द एग्जामिनेशन, व्हेन यू नो द वीकनेस ऑफ द एग्जामिनेशन। जब आप दोनों को जानोगे, कमजोरी क्या है, ताकत क्या है किसी चीज की, जब भी आप उससे जीत पाओगे। जब आप खुद ये जान लोगे कि भैया इस एग्जाम की ये ताकत है, यहाँ से हमको ज्यादा इस एरिया में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, इस एरिया को छोड़ने की जरूरत है, और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करते हो, तो कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो। चाहे आपने, जैसे आप अभी हमारे टाइम में तो AIEEE का एग्जाम होता था, जब हम एक फाइट करके आते थे। अब पता नहीं शायद IIT के एग्जाम के थ्रू एडमिशन होते हैं, वट एवर। तो जो भी एग्जाम आप देते हैं, तो you just need to know the strength of the examination, the weakness of the examination, and just plan accordingly. जब आप तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग की, you plan that physics, chemistry, maths, तीन सब्जेक्ट, इन तीन सब्जेक्ट में ये टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड देन डायनामिक्स, समथिंग लाइक दैट। तो यू प्लान योर स्ट्रेटेजिक, भैया इसमें इतने क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आते हैं, ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट है, हमको इतनी तैयारी करनी है। So it's like that. तो सिविल सर्विसेज में क्या है, 3 स्टेज एग्जामिनेशन है। फर्स्ट इज प्रीलिम्स, देन मेंस, देन द पर्सनालिटी टेस्ट व्हिच इज कॉल्ड इंटरव्यू। तीनों स्टेजेस का अपना अपना एक तरीका है इसको एक्सेल करने का। अब एक्सेल कैसे करना है हर एग्जाम को, हर एग्जाम एक सेपरेट फाइट है। प्रीलिम्स से सेपरेट फाइट, मेंस से सेपरेट फाइट, इंटरव्यू से सेपरेट फाइट। तीनों चीजों के लिए सिलेबस जो है, प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, मेंस का जो सिलेबस है, और पर्सनल टेस्ट का कोई सिलेबस नहीं है, बट वी हैव टू प्लान फॉर इट कि भैया क्या पूछा जाता है, कि हमको क्या डेवलप करना है खुद के अंदर एक पर्सनल टेस्ट को एक्सेल करने के लिए। तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से कि एक सिलेबस होता है, उसको अपना गाइड बना के हमको इन एग्जाम्स की तैयारी करनी है। अब हम कॉलेज में हैं, ऐसा तो है नहीं यार हमें देखो कॉलेज की पढ़ाई भी करनी है। कॉलेज की पढ़ाई no way is an easy cakewalk। तो कॉलेज के साथ अगर तैयारी करनी है सिविल सर्विसेज की, तो आई एम नॉट सेइंग कि भैया आज से सब कुछ छोड़ दो और बस ले आओ सारी किताबें सिविल सर्विसेज के लिए और पढ़ना शुरू कर दो, कॉलेज की पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दो। आई एम नॉट सेइंग, आपको जरूरत भी नहीं है इन चीजों को करने की। you just need to imbibe in yourself
just develop a habit of reading newspaper daily. Don't miss it. Read newspaper daily. Just stick to it to your mind कि हमको अखबार पढ़ना है daily. अब अखबार ऐसा भी नहीं भी पंजाब केसरी हमारा जला बैठ के लास्ट पेज पढ़ने लग गए. एक अच्छा नेशनल डेली. For English readers, I will prefer Hindu, Indian Express. For Hindi readers, I will prefer Hindustan. और देखो कॉलेज में आते ही जैसे मैंने ये देखा है, जब मैं फर्स्ट ईयर में जब मैं एंटर हुआ था कॉलेज में आते ही कुछ अच्छे अच्छे हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने हमें मोटिवेट किया, गाइड किया. तो क्या किया भैया, कॉलेज में घुसते ही न्यूज़पेपर वाले को बुलाया, हाँ भाई कल से 3 न्यूज़पेपर चालू कर दे, 2 हिंदी के, 2 इंग्लिश के, 1 हिंदी का, तीनों पढ़ेंगे और फाड़ देंगे भाई अपन तो. देखो ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल. डोंट गो फॉर इट कि भैया आज से ही हमको सब कुछ कर देना है. एक अच्छी हैबिट को इम्बाइब करने के लिए जरूरी है कि आप कंटिन्यूटी लाएं. ये नहीं कि कल ही आप न्यूज़पेपर वाले को फोन करेंगे भैया पेपर चालू करो. आज के दौर में देखो टेक्नोलॉजी का जमाना है. अपना लैपटॉप खोलें, अपना टैब या मोबाइल जो भी खोलें, हर न्यूज़पेपर की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. मैं मतलब पायरेसी को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, बट या इट इज अवेलेबल ऑनलाइन. एंड यू आर इंजीनियर्स, यू नो कि कौन सी चीज़ कहाँ से हमको वेब पे मिलनी है. जस्ट गेट ए सॉफ्ट कॉपी, रीड इट, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर. और जिनको डिजिटल कॉपी पढ़ने में दोज आर नॉट कन्वीनियंट, गो टू कॉलेज लाइब्रेरी. अगर न्यूज़पेपर वहाँ आता है, आई थिंक MNIT की लाइब्रेरी इज बेस्ट लाइब्रेरी आई हैव सीन. वहाँ सब चीज़ अवेलेबल है. अगर नहीं है तो यू जस्ट गो एंड टेल लाइब्रेरियन, he will or he or she will arrange it, not now, sometimes later. तो पहली चीज न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की. इससे आपकी 2 चीजें डेवलप होती हैं. थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है, आप सोचना शुरू करते हैं, अपने आसपास के बारे में जानना शुरू करते हैं, अपने आसपास के बारे में. It makes you aware about the ground realities which is happening currently in world, in your country and in your area. एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनने के लिए ये चीज़ बहुत जरूरी है कि आप अपने आसपास की चीज़ों से अपडेट रहें. गॉसिप से नहीं, चीज़ों से. ये नहीं कि उसने इसको ऐसे बोला, उसने इसको ऐसे बोला, इसने वहाँ दंगे कर दिए. इन चीज़ों से अपडेट होने के लिए आपकी नॉलेज नहीं बढ़ रही. अच्छी चीज़ें जो इश्यूज चल रहे हैं आपके एरिया में, आपके कंट्री में, वर्ल्ड में, उन चीज़ों से आप अपडेट रहते हैं अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट आप डेली डेवलप करते हैं. अब जितने भी एस्पिरेंट से मिलोगे या जो लोग सिविल सर्विस का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, दे विल ऑलवेज सजेस्ट यू कि जब से आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं, इट इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ज्वाइनिंग सिविल सर्विस. ठीक है, तो इसमें मैं और ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा. आई जस्ट वांट टू से स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर. उसके बाद देखो दूसरी स्टेज आती है, न्यूज़पेपर पढ़ना हम शुरू कर चुके हैं, चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं. अब चीज़ों को लिंक करना भी जरूरी है. न्यूज़पेपर पढ़ने समय ये तो पता है कि भैया 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया. जम्मू कश्मीर बिकेम ए इनसेपरेबल पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन. हमको ये तो पता है, न्यूज़पेपर पढ़ा हमने. अब 35A है क्या, आया कहाँ से, वो चीज़ें हमें बताएंगी हमारी बेसिक बुक्स. For civil services, there are no basic books other than NCERTs. हम लोग पढ़ के आ गए, रट के आंसर लिख के आ गए, 10th क्वालिफाई कर ली, 12th क्वालिफाई कर ली. बट अब उन चीज़ों को समझने का टाइम है. इसलिए there is now it is time to go back, read those books again and just link with the present scenario. हम जाके वहाँ सोशल साइंस पढ़ें, हिस्ट्री की बुक्स पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें कि भैया आप उड़ीसा में अम्फान तूफान आया था, तो तूफान आते क्यों हैं, उड़ीसा की प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ हर साल 2 तूफान, 2 साइक्लोन हर साल आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं. तो ये न्यूज़पेपर आपको ये तो बता देगा कि भैया वहाँ पे ये अम्फान तूफान आया है, वहाँ पे ये तूफान आया है, पर क्यों आया है, उसकी साइंस क्या है, लॉजिक क्या है और उसका प्रिवेंशन क्या है, ये चीज़ें आपको बुक्स बताएंगे. So start reading NCERT books from class 8. I have written 7. No, it's class 8 to 12. Start reading it. I'm not saying just complete one book in one day.
I'm saying pick one book, try to finish it in 15 days, 20 days. You are in no hurry. I'm just talking to you. You are in no hurry. You are just developing habits and continuing with your habit. आप एक आदत डाल रहे हैं और उस आदत को कंटिन्यू करने की आदत डाल रहे हैं. तो पहली चीज न्यूज़पेपर को हम डेली पढ़ रहे हैं. दूसरी चीज जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चीजों को हमारे मन में सवाल आ रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके जवाब हम बुक्स से मिलेंगे. बुक्स में मैं सबसे ज्यादा समझता हूँ कि आप एनसीईआरटी बुक्स जरूर पढ़ें अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाह रहे हैं. उसके बाद तो देखो एक बेसिक नींव तैयार होने के बाद ना मकान खड़ा करने में टाइम नहीं लगता है. लोग कहते हैं कि सिविल सर्विस की तैयारी के लिए साल चाहिए, 2 साल चाहिए, 3 साल चाहिए. ऐसे अगर आप कॉलेज में सीरियस है ना तो इट टेक्स जस्ट 1 ईयर टू क्वालिफाई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. जितने भी आप टॉप रैंकर्स देखेंगे जनरली क्या होता है, वो लोग वो होते हैं जो कॉलेज +1 में एक्सेल कर जाते हैं. तो जब आपका फाउंडेशन आपका तैयार हो गया ना, फाउंडेशन इज प्रिपेयर्ड बाय 2 थिंग्स. वन इज न्यूज़पेपर एंड सेकंड थिंग एनसीईआरटी बुक्स. उसके बाद आपकी स्पेशलाइज्ड प्रिपरेशन है. जैसे आपको ऑप्शनल पेपर है, आप जो भी ऑप्शनल पेपर ले रहे हैं या और अदर छोटे मोटे सब्जेक्ट को तैयार करने में मैक्सिमम 6 to 7 मंथ लगते हैं. डेडिकेटेड प्रिपरेशन जब स्टार्ट करना शुरू करते हैं. एंड द आइडियल टाइम टू start the dedicated preparation I think is third year onwards you can dedicate yourself for this examination. आप इंजीनियर हैं, जैसे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या जो भी सब्जेक्ट यूपीएससी में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, आई थिंक सिविल इंजीनियरिंग है. अगर आप इनको ऑप्ट करते हैं देन योर ऑप्शनल, तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी. ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है. कुछ लोग कहते हैं यार कि यूपीएससी का जो सिलेबस है ऑप्शनल का इंजीनियरिंग का, दैट इज फार टू डिफरेंट देन व्हाट वी आर टॉट इन कॉलेजेस. भाई मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऐसा हमें इसलिए लगता है कि हमने कॉलेज में कुछ पढ़ते ही नहीं है. वी जस्ट स्किप. हम पढ़ते हैं क्या कि एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले, उसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन अपने जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट का सिलेबस है दैट इज फार टू डिफरेंट देन यूपीएससी. अगर आप पढ़ना चाहें तो अपने डिपार्टमेंट्स के अच्छे प्रोफेसर्स की हेल्प लें अपने ऑप्शनल को तैयार करने के लिए. इफ यू वांट टू चूज योर ऑप्शनल एज योर इंजीनियरिंग पेपर, एमएनआईटी में अच्छे प्रोफेसर्स की कमी नहीं है. बी श्योर अबाउट इट. मैं जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अपनी क्लासेस कॉलेज में ले रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, इतने अच्छे, इतने एक्सीलेंट, इतने इंटेलिजेंट टीचर्स आर अवेलेबल इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट कि आपको बाहर से ना कोचिंग करने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है. यू प्रिपेयर, आपके प्रोफेसर ही तैयार करा देंगे. एक एडवांटेज और होता है इंजीनियरिंग के पेपर्स लेने का एज एन ऑप्शनल. You can go for IES also. You can appear in IES, in Indian Engineering Services Examination also. It's like topmost engineering examination of country. तो जो भी मैंने ऊपर बताया कि भैया आप पढ़ लें स्लाइड में कि पहली चीज़ हम ये पहचान लें कि एग्ज़ाम की स्टेजेस क्या क्या हैं. 3 स्टेजेस हैं. 3 स्टेजेस में हमको करना क्या है, सिलेबस को एक गाइड बनाना है. हम फर्स्ट ईयर से ही अपने अंदर एक हैबिट डालें कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है विदाउट स्किप. गॉसिप्स नहीं पढ़नी है, गॉसिप्स अवॉइड करनी है. तो उसके बाद अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डेवलप कर पाते हैं देन वी शुड गो फॉर एनसीईआरटी बुक्स. जब एनसीईआरटी बुक्स पे हम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कमांड हासिल कर रट लें. जब हमको लगे कि एनसीईआरटी हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं, चीज़ें हम रिकॉल कर पाते हैं, अगर हमारे सामने सेम चीज़ें आती हैं तो देन गो फॉर स्पेशलाइज्ड प्रिपरेशन इन योर फाइनल ईयर और थर्ड ईयर. लास्ट में चीज़, रात में जब आप सोने जाए ना, जब आपको नींद आने लगे, तो ये लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं आप, जब आपको नींद आए ना तो बैक ऑफ द माइंड मैं ये समझता हूँ कि आप
आपको नींद आ रही है, दैट मीन्स आपकी जो टू डू लिस्ट है ना आज की, वो टिक हो गई है सारी। जब आप सुबह उठे, आपने प्लान किया न्यूज़पेपर पढ़ना है, बुक्स में ये पढ़ना है, कॉलेजेस के असाइनमेंट ये करने हैं, स्पोर्ट्स में ये करना है, जो भी आपका दिन का शेड्यूल है, जब आपने सारे टिक कर लिए ना, जब एक आप अच्छी स्लीप डिजर्व करते हैं, so whenever you are going to bed, just make sure you have ticked all boxes on your to do list. ठीक है, ये तो बात हुई कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन कैसे करना है। अब है सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न, कॉलेज एंड सिविल सर्विसेज कैसे मैनेज करें। जब फर्स्ट ईयर में आते हैं, बहुत सारी एस्पिरेशंस लेके आते हैं, भैया कॉलेज में ये करेंगे, वो करेंगे, धमा चौकड़ी करेंगे, भाई स्टार बन के निकलेंगे अपन तो। बिल्कुल देखो, बी प्रैक्टिकल, कॉलेज में सब करो, मस्ती करो। आई एम नॉट सेइंग फॉर द सेक ऑफ क्लियरिंग वन एग्जामिनेशन यू शुड सैक्रिफाइस ऑल द थ्रिल, all the happiness of your college life. Don't ever do it. कॉलेज में जितनी मस्ती हो सकती है ना, जिस चीज में खुशी मिल सकती है, वो करो यार। कॉलेज की जो मेमोरीज है ना, जब तक आप डेड वेड मतलब मरते टाइम तक आपको याद रहेगी कि कॉलेज में हमने ये किया। जब मैं अभी ट्रेनिंग ले रहा था, आपके बगल में ही है OTS, जहाँ पे RAS जो सेलेक्टिव है उनकी ट्रेनिंग होती है, OTS कहते हैं, आपने देखा होगा, जिस बगल में है। तो व्हेन आई वाज getting trained in the HCM RIPA, it is called SCM RIPA, तो बगल में ही बिल्डिंग है अपनी MNIT की, बगल में कैंपस है MNIT का। So whenever I get time ना, got time, I used to come to my college campus, और अपनी जो मेमोरीज है ना उनको फ्रेश कर देते। मतलब कॉलेज के 10 साल बाद भी जब मैं कॉलेज आता हूँ, आई फील लाइक यार 2007 की बात है जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ। तो लाइक मैंने सब किया कॉलेज में यार, मस्ती भी खूब की, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की, सब काम किया। तो व्हाट आई वांट कि आप एक एग्जाम की तैयारी में, आई डोंट वांट कि यू सैक्रिफाइस योर फन, यू डू। आप स्पोर्ट्स भी खेलो, आप कल्चरल इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करो, आप पढ़ो भी, आप अपने असाइनमेंट, अपने CGPA पे भी काम करो, यू डू एवरीथिंग। दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ। बट सीधी सी बात है, देखो कॉलेज इज नॉट द एंड। हमको भी पता है 4 साल है कॉलेज में, केवल 5वीं साल वी आर गोइंग टू लीव दिस कैंपस। उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको प्लान करके हैं 6-7 साल रहना है बैक लगा लगा के। टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल कैंडिडेट, 4 साल है आपके पास, 5वीं साल यू हैव टू लीव दिस कैंपस। और उसके बाद ना 4 साल के बाद 40 साल की लाइफ आपको जीनी है। एक्टिव लाइफ की मैं बात करूँ, आदमी 60-65 साल तक की एक्टिव लाइफ जीता है। तो ऐसा ना हो जब 4 साल बाद आप जाओ ना, खाली हाथ लेके निकलो यहाँ से। आई जस्ट वांट, जब 4 साल बाद निकलो ना, तो ऐसे निकलो कि वो 40 साल की लाइफ भी आप प्लान कर चुके हो। कॉलेज में सब करो, अपना ओरिएंटेशन बस फिक्स रखो, भैया मुझे यहाँ जाना है, मुझे सिविल सर्विस अगर ज्वाइन करनी है, तो मेरा ओरिएंटेशन थ्रू आउट माई कॉलेज विल बी लाइक कि थोड़ा सा टाइम में चुरा चुरा के ना अपने सपने के लिए दे रहा हूँ। मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा हूँ, मैं NCERT बुक्स पढ़ रहा हूँ, मैं अच्छी बुक्स पढ़ रहा हूँ, मैं अपने ऑप्शनल की तैयारी भी कर रहा हूँ। जब मैं कॉलेज से निकलूंगा और UPSC का एग्जाम देने जाऊंगा ना, तो माय एम शुड बी कि मैं उस एग्जाम को उसी अटेम्प्ट में क्लियर करूँ। तो वो जब भी होगा जब आप कॉलेज में जी तो रहे हो अपनी जिंदगी, बट आपके जो है ना, जैसे बोलते हैं अर्जुन का जो था, चिड़िया अपने निशाना लगाने को आगे उसको आंख दिख रही थी, तो ऐसा ही है, आप कॉलेज की जिंदगी भी जी रहे हो और आपको आंख दिख रही है कि सिविल सर्विसेज मेरा कैरियर है। सो यू आर फोकस्ड ऑन दैट। आप सब करो, कॉलेज में मस्ती करो। मैं जब कॉलेज में आया था तो यार फर्स्ट ईयर तो ऐसे निकल गया था कि पता ही नहीं चला था। इट्स लाइक आई एंटर्ड इन 23 जुलाई 2007 और कॉलेज का सेमेस्टर हमारा अप्रैल फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो गया था। वो ऐसे निकल गया एकदम उड़न छू, पता ही नहीं चला। सारा टाइम नए दोस्त बनाने में, दोस्तों से झगड़ने में। अब तो शायद रैगिंग खत्म हो गई, हमारे टाइम पे तो बहुत होती थी, तो रैगिंग देने में और बस मजे करने में निकल गया। पता ही नहीं चला कि भैया कैरियर भी कुछ बनाना होता है। आई गॉट 6 CGPA इन माई फर्स्ट टाइम, तो बस लग गए, इन्वॉल्व हो गए कि भैया आना है और बस फाड़ देना है कॉलेज, यार हीरो बनना है कॉलेज में।
या मस्ती भी सब काम किया। बट इस चीज में दिक्कत क्या आती है कि हम मस्ती करते करते या कुछ करते करते इतनी दूर निकल जाते हैं कि जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना, हमारे हाथों में कुछ नहीं होता है। तो वो चीज आप प्लीज ना करें। हर चीज को टाइम में अपने एक प्रायोरिटी लिस्ट जो होती है ना दिन की, उसके हिसाब से काम करें। मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। हर चीज को एक प्लान योर टाइम। आई जस्ट वांट टू प्लान योर टाइम एंड यूटिलाइज योर टाइम अकॉर्डिंग टू योर प्लान। दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि यार सिविल सर्विसेज के लिए फीलिंग है ना, वो जब तक नहीं आती जब तक आप देखते नहीं हो यार कि ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो आई जस्ट हैव अ लिटिल स्मॉल आइडिया। जो भी सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाह रहे हैं कि यार करना चाहिए, तो आई जस्ट वांट कि यार ज्वाइन सम एनजीओ इन योर कॉलेज व्हेन यू आर इन कॉलेज। जब मैं कॉलेज में था तो आई ज्वाइंड द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव था, समथिंग लर्निंग, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम। तो उसमें क्या करना पड़ता था कि हमारे कॉलेज के पीछे झालाना बस्ती है, तो हम वहाँ जाते थे, जो बच्चे होते थे उनको असेंबल करते थे, 10-15 बच्चे होते थे एंड हम उनको पढ़ाते थे। हम 2 लोग थे। तो यार ज्वाइन हमने फन के लिए किया था यार, चलो ये भी करके देखते हैं। पर जब आज जाने लगे, इंटरेक्शन हुआ लोगों से, तो थोड़ी आंखें खुली यार, देखो इस तरह की लोग भी अभी हैं 21st सेंचुरी में, जिनके घर में खाने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। तो जब तक वो चीज अपनी आंखों से नहीं देखोगे ना, तो मोटिवेशन नहीं आएगा। मैं अभी फिलहाल में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, ग्रामीण विकास में। टुडे मॉर्निंग कलेक्टर साहब ने ड्यूटी लगाई सुबह 6 बजे यार, कि नरेगा के जो काम चल रहे हैं उनका इंस्पेक्शन करके आओ यार, ग्राउंड पे क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, देख के आओ जरा। तो टुडे मॉर्निंग आज फील्ड में गए सुबह 6 बजे। तो आपको पता है कि कोरोना के टाइम पे क्या हुआ है कि लोगों के एम्प्लॉयमेंट छिन गए, रोजगार छिन गए, घर आ गए लोग, प्रवासी थे, माइग्रेंट्स उनको बोलते हैं, घर आ गए। हालत ऐसी है ग्राउंड पे कि यार भूखे मर रहे हैं लोग, भूखे। खाने को नहीं है, इलिटरेसी है, पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आज भी 21st सेंचुरी में आके भी ग्राउंड पे रियलिटी बहुत बहुत डरावनी है। तो जब तक आप इन चीजों को देखोगे नहीं, तब तक आपके अंदर वो मोटिवेशन उस लेवल का नहीं आ पाएगा। तो देखो, मैं ये और वो चीज देखने का एक अच्छा तरीका है, छोटा सा कोई एनजीओ ज्वाइन करो। वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा इन चीजों को देखने की, करीब से जानने की चीजों को। कॉलेजेस में हमारे बहुत अच्छे अच्छे एनजीओ से टाई अप्स है, लिंक्स है। यू कैन जस्ट ज्वाइन एंड वर्क फॉर इट। अपना सारा टाइम इसको ना दें। आई स्ट्रिक्टली एडवाइस कि सारा टाइम ना दें, फुल टाइम एनजीओ वर्कर ना बन जाएं, जस्ट टू टेक द टेस्ट ऑफ द सोसाइटी व्हिच इज ग्रास रूट लेवल सोसाइटी। जस्ट गो एंड सी इट। आपको एक मोटिवेशन देंगे सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए। एंड उसके अलावा दूसरी चीज जो काम आती है, एक अपना राइटिंग हैबिट्स जरूर इनकलकेट करें। चीजों को लिखने की, समझने की और समझ के उनको लिखने की, ये आपके बहुत काम आएगी आपकी तैयारी के दौरान भी, क्योंकि आपको मेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है। यू आर गोइंग टू राइट द आंसर। क्वेश्चंस ऐसे कभी नहीं आते हैं कि भैया आपने बुक पढ़ के गए और बुक के पीछे जो क्वेश्चन होते हैं वही आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो रिटन क्वेश्चंस होते हैं, दे फोर्स यू टू थिंक। और उन 3 घंटों में सोच पाना,
जब भी संभव होगा जब आपको प्रैक्टिस होगी चीजों को समझने की, उनके ऊपर सोचने की और फिर उनको वर्ड्स में लिखने की। तो जो भी आप पढ़ें, देखें, सोचें, आसपास अपने देखें, उस पे उस पे बैठ के सोचें और उसको लिखना सीखें। What do I mean to say? Bring your thoughts on paper. अपने विचारों को कागज पे लाना सीखें। It will help you in two ways. It will make you better thinker, and it will develop the understanding of the subject which is being considered. ये आपको एक अच्छी सोच डेवलप करने में हेल्प करेगा और एक अच्छी समझ डेवलप करने में, चीजों की अच्छी और समझ और बारीकियां समझने में मदद करेगा। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, किसी डायरेक्शन में जाने के लिए ना मोटिवेशन की जरूरत होती है, कंटिन्यूअस मोटिवेशन। कुछ लोगों के अंदर ना आग अंदर ही लगी होती है, मतलब हमेशा से लगी होती है, मुझे करना है करना है करना है। उनको ना बाहरी चीजों की जरूरत नहीं होती मोटिवेट करने की। रितेश अग्रवाल जो है, ओयो के फाउंडर जो है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन ही जॉइंड कॉलेज, ही न्यू कि यार कॉलेज नहीं करना भाई, अपना बिजनेस धंधा खड़ा करना है अपने को, अरबपति बनना है अपने को। आई वांट टू बी मिलेनियर। जस्ट मेरा फोकस, मुझे पता है उनके अंदर आग लगी है शुरू से, यार ये करना है। तो उनको ना बाहर की कोई दुनिया ना समझा सकती ना कर सकती, वो करके रहेंगे। दे आर मोटिवेटेड बाय देयर कंसाइंस। सिविल सर्विसेज में क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अंदर से मोटिवेटेड है, दे डोंट नीड एक्सटर्नल मोटिवेशन। पर जनरली क्या है, जर्नी इतनी थकाऊ और पकाऊ है कि हम थक जाते हैं एक स्टेज के बाद, यार अब नहीं हो रहा है, यार पक गए यार, मजा नहीं आ रहा यार, क्या अचीवमेंट करेंगे यार, साला एक बन जाएंगे, एक मिनिस्टर के अंडर काम करना पड़ेगा, प्रेशर देगा, करप्शन, ये वो सब चीज एक तरफ है। आप पहले बनो तो सही। वो कहावत सुनिए किसकी है, अरे आनंद महिंद्रा की है या रतन टाटा की है? कहते ना कि यार पैसा तो हाथ का मैल है। तो आनंद महिंद्रा से पैसे कमा लो ना, जब बोलो ये चीज कि पैसा हाथ का मैल है, शुरू में मत बोलो। तो पहली चीज कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने अंदर ना मोटिवेशन कांस्टेंट रखो कि मुझे सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है। अगर आपके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन है, इट्स वेल एंड गुड, आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज, कुछ ऐसे लोग हैं मुझ जैसे हैं, भैया नहीं मेंटेन कर पाते, अपना पेस मेंटेन नहीं कर पाते, थक जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, मेटा थिंकिंग करने लग जाते हैं, यार क्या है यार, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो भाई ऐसे चीजों के लिए ना एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो व्हाट आई एडवाइस, अपने सीनियर्स जो ये एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, अपनी एलुमनाई के वो लोग जो इन सर्विसेज को ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं, उनसे बात करें, उनकी हेल्प लें। अगर नहीं अवेलेबल है, नहीं बात कर पा रहे हैं, तो आजकल तो ये डिजिटल जमाना है, जस्ट open YouTube and search for the interviews of some toppers of UPSC like Tina Dhabi, Gaurav Agarwal. You just go and search and watch the interviews of these people. It will motivate you. It will help you to be on path. मंजिल तक पहुंचने के लिए ना रास्ते पे और सही रास्ते पे रहना भी जरूरी है। जब आप एक मंजिल तय करते हैं और उस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं ना, तो यार डाइवर्जेंस बहुत आते हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं। भाई जो सक्सेसफुल जो व्यक्ति होता है, जो इंसान होता है ना, उसका बस एक ही काम है कि वो मंजिल तो उसने पकड़ ली, बस डिस्ट्रैक्शंस और डाइवर्जेंस से दूर रहे। और इस चीज में आपकी हेल्प करेंगे जो ऑलरेडी टू आर सेलेक्टेड पीपल। और देखो सर्विसेज में दोनों तरह के लोग मिलते हैं, डिमोटिवेटेड लोग भी जो थक चुके हैं अपनी सर्विस, और पॉजिटिव लोग भी। तो आई जस्ट सजेस्ट कि पॉजिटिव लोगों के टच में, और जो
प्रीवियस ईयर सेलेक्टीज हैं जो ऑलरेडी सर्विसेज सर्व कर रहे हैं उनके इंटरव्यूज दे रहे हैं। इट विल हेल्प यू टू गेट मोटिवेटेड। और इसके अलावा तो यार अपने कॉलेज और अपने गोल है, जो कॉलेज के जो भी गोल है, कॉलेज के भी एक क्या बोलते हैं उसको, एक डिमांड होती है कि यार एग्जाम भी क्वालिफाई करने हैं, कॉलेज की सीजीपीए असाइनमेंट भी करने हैं, भी करने हैं, भी करनी है, जो भी करना है उन चीज़ों को भी प्रॉपर टाइम दें, कॉलेज में मस्ती भी खूब करें। बट हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें यार, ये सब 4 साल के लिए है, 5वीं साल ऐसा ना हो हम खाली हाथ रहें। तो अपने अगले 40 साल के लिए जरूर करें और प्लान के अकॉर्डिंग काम जरूर करें। ठीक है सर ने मुझे 45 मिनट्स का टाइम दिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू गौरव। अब मैं 1 by 1 जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बाद में अपन 1 by 1 जो डिस्कशन है वो कंटिन्यूस चलेगा। थैंक यू सो मच गौरव। नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग अभिषेक कुमार, हैव यू एनी क्वेश्चन? अभिषेक कुमार? Yes, sir. You can ask me. Sir, actually, I want to know that how much difference between UPSC and RAS? यूपीएस देखो डिफरेंस इतना है कि एक सीडी है, अंडरस्टैंड, एक सीडी है। Yes, yes, sir. ठीक है, मंजिल यही है। Yes, sir. आईएएस कर रहा है वो यहाँ से कर रहा है, आरएएस शुरू यहाँ से कर रहा है। Yes, sir. मंजिल पे पहले कौन पहुंचेगा? बस यही डिफरेंस है दोनों का। एरिया ऑफ ऑपरेशन सेम है, बस यही थोड़ा पावर्स का फर्क है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। सर फॉर प्रिपरेशन, सर प्रिपरेशन दोनों में कितना डिफरेंस है प्रिपरेशन में? प्रिपरेशन में? यस सर। I will suggest कि IAS is easier than RAS. Why sir? Because जब देखो RAS का एग्जाम मैंने जब दिया था, it took almost 4 years to qualify. जब एग्जाम हुआ 2013 में, उसके बाद RPSC हो गई 4 साल के लिए। Yes sir. में जाके कंप्लीट हुआ। तो IAS is like annual cycle. Yes sir. एग्जाम देते हो, टाइम पे रिजल्ट्स आते हैं नहीं, और उसके बाद सिलेबस इज क्रिस्प। Yes sir. Competition is high, but the thing is कि आप यार MNIT से belong करते हो। Yes sir. You have already fought a tough competition. Yes sir. College में you have already fought a tough competition. That means you have the potential, you have the stamina, and you are intelligent. तो competition आपके लिए मैटर नहीं करता। What I suggest, syllabus easy है, annual cycle है। Yes. ठीक है, तो आप फोकस पढ़ाई कर सकते हैं। That's why IAS is much easier than RAS. कुछ लोग मैं ऐसे जानता हूँ अपनी लाइफ में, RAS 3-4 बार दिया, didn't get through, IAS एक बार में दिया, got selected. Yes. And sir, what about CGPA? CGPA से कितना मैटर करता है आगे लाइफ में या नहीं करता? CGPA? Yes sir. यार CGPA तो UPSC में तो 60% चाहिए, 60% नहीं चाहिए। I think it's a simple graduation UPSC wants. Yes sir, yes sir. पर sir, it आपका इंटरव्यू आपका करता है या नहीं करता? इंटरव्यू में तो यार आपकी पूरी लाइफ मैटर करती है, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मैटर करता है। आई सजेस्ट कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा ही होना चाहिए। Yes sir. You can't be casual about your CGPA, क्या चलो यार UPSC में तो पास चाहिए तो भैया हम 5 CGPA लेके बैठ गए। ऐसा नहीं, आप जहाँ पे भी हो ना वहाँ एक्सेल करने की कोशिश करो। Yes. Thank you sir. Okay Abhishek, thank you Abhishek. You can switch off your mic also Abhishek, please. Next Anupam Sharma. Yes sir. जी सर Yes, sir. मैं पूछ रहा था तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो पोस्ट या रेपुटेशन मिलता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से तक कम क्यों मिलता है सर? तो इसीलिए डाइवर्जन होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहिए पर्सन को, भले ही उसने इंजीनियरिंग की हो। तो इस पर आपको बोलना चाहिए। नहीं, ये क्वेश्चन आपने कल भी पूछा था। मैं आपको बता देना चाहूँ कि ये आपका खुद का वो है कि मेरे को
सिविल सर्विसेज में जाना है या इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना है। देखो दोनों की जो पोजीशन है, सपोज करो कल सर ने भी बताई थी कि अपने के शर्मा जी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, तो देखो ये खुद का एम होता है कि मेरे को किस फील्ड में जाना है। हर फील्ड की हर चीज की एक अलग अहमियत होती है। आप सपोज करो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या केमिकल इंजीनियर हो, तो उसकी भी एक अलग अहमियत है, लेकिन वो अपन को फोकस करना पड़ेगा कि हमको किस रास्ते में जाना है। जी अनुपम। एग्जैक्टली जो सर ने कहा जैसे बिल्कुल सही। आपका कॉल है, आपको क्या करना है। एपीजे अब्दुल कलाम वाज नॉट एन आईएएस, वाज नॉट एन आईपीएस, बट उनके जो कद है ना वो कई आईएएस और आईपीएस से बड़ा है। इट्स योर कॉल, टोटली योर कॉल। मैं बस इस चीज में हेल्प कर सकता हूँ कि आपको अपना कॉल अगर आइडेंटिफाई करना है ना, इफ यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज देन वर्क फॉर सोसाइटी। मैंने कहा ना, जॉइन एन एनजीओ एंड जस्ट ट्राई टू सी द हाउ सोसाइटी वर्क्स। इफ इट मोटिवेट्स यू देन यू आर सिविल सर्विसेज मटेरियल। सर जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो बंदा करना चाहते हैं, मीन्स डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तब भी उसके पास पावर या ऑथेंटिसिटी नहीं होने के कारण वो उस फील्ड में उतना कर नहीं पाता है जितना एक आईएएस कर सकते हैं, उतना एक इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं वो उतना इम्पैक्ट नहीं ला पाता है। अनुपम, you are not audible, please be loud. सर जो इम्पैक्ट एक आईएएस ला सकता है समाज में वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से ही आता है। अगर कोई डायरेक्टर है किसी डिपार्टमेंट का तो वो भी उतना चेंज नहीं ला पाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। यार देखो ये चीज तो है, देखो चेंजेस दोनों ला सकते हैं, बट जो रियल टाइम चेंजेस आप देख पाते हैं वो आईएएस या आईपीएस के पास ऑप्शंस ज्यादा हैं रियल टाइम चेंज लाने के। कल को हीराकुद डैम, भाफानागल डैम एक आईएएस आईपीएस ने नहीं बनाया, किसी इंजीनियर ने बनाया होगा। ही ब्रॉट द चेंजेस, बट वो चीज विजिबल नहीं हो पाई बिकॉज वो रियल टाइम में नहीं आ पाई। यस सर। अनुपम, any question? नो सर, थैंक यू। Okay, thank you. Next, David. Any question, David? Okay, next, Deep Singh. Deep Singh, any question? Sorry, Deepak Singh. Deepak Singh. Gaurav Kumar. Gaurav Kumar, any question? Okay, next, Gaurav Yadav. Any question, Gaurav Yadav? Next, Meenu Suhag. Any question? Okay, thank you. Priyanka Gupta. Any question? यस सर। हाँ, yes. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम प्लेसमेंट के अंदर नहीं बैठते हैं अगर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, और अगर हम डायरेक्टली वहाँ पे ये करना चाहते हैं कि डायरेक्ट अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होगा कि अगर हम प्लेसमेंट में भी नहीं बैठे, हमारे एक तरफ से तो ये भी नहीं हुआ और दूसरी तरफ से अगर हमारे एग्जाम में भी क्वालिफाई नहीं होते, तो हम क्या कर सकते हैं फिर उसके लिए, अगर कोई ऐसा सजेशन हो आपकी तरफ से। तो एकदम कंप्लीट रिस्क तो लेना मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल ही आप एक कंप्लीट रिस्क लें, आप प्लेसमेंट भी ना लें, आप एग्जाम की तैयारी में ही डिवोटेड हो जाएं। मैं कहूँगा हर चीज़ में एक्सेल करें ना यार। कॉलेज में सीजीपीए भी बनना है, प्लेसमेंट भी लें, इट्स योर कॉल कि आप ज्वाइन करें नहीं करें सर्विसेज। नो सर, मतलब सीजीपी ठीक है, मतलब 7.5 to 8 लगभग रहती है हमेशा ना, कभी 8 भी ज्यादा हो जाती है, 8 से भी ऊपर। बट अगर मेरे को मतलब ये नहीं है कि मुझे प्लेसमेंट में बैठना ही नहीं है, क्योंकि आगे मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है मेरे को ये फील्ड ही, तो मतलब इस वजह से अगर कुछ अदर ऑप्शन हो सकता है कि मैं बिल्कुल एक एग्जाम पर ही फोकस करूँ, तो कि अगर बाद में मेरा नहीं होता तो। कर लोगे? आपको लगता है आप कर लोगे? पता नहीं। वो आप नहीं कर पाओगे, आपको जब पहले लग जाए ना, जब कर लोगे देन स्टार्ट टू यस व्हाट आई से। आप एमएनआईटी में हो, आप ऑलरेडी कंपटीशन फाइट करके आए हो, यू नो द वैल्यू ऑफ कंपटीशन, आप कर लोगे। तो आप सेकंड थॉट ना रखें, आप कर लोगे। यू जस्ट नीड ए गुड डायरेक्शन, गुड गाइडेंस एंड यू विल गो थ्रू। बी पॉजिटिव अबाउट योर कैरियर, आप कर लोगे, बी एश्योर्ड। यस आप अपनी सारी एनर्जी एक जगह लगाना चाहते हो, लगाओगे यार, आप कर लोगे।
हाँ सर, मैं एक जगह पे लगा कि फिर मैं सोच रही हूँ कि अगर कॉलेज के साथ में, मतलब अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो अभी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर और फिर कॉलेज अगर फिर भी नहीं होता तो मैं बाद में भी कर सकूँ, 1 साल का देख के फिर। कोई बात नहीं, आप अगर सिविल से करना चाहते हो तो एक पहली चीज ये है कि ये टोटल डेडिकेशन मांगती है, और आप डेडिकेशन से तैयारी करने को तैयार हो, आप कर लोगे, इजीली कर लोगे। यस सर। ओके, और सर अगर अभी कभी गाइडेंस अगर आपकी जरूरत हो तो हम कैसे क्या ले सकते हैं? सर से आप मेरा नंबर ले सकते हैं। यस सर, या फिर अपने कॉलेज के जो एलुमनाई है ना, इट्स सो ब्राइट। जब जो कल सर बता रहे हैं, जैसे कृष्ण साय जी डीआईजी लगे हैं सीआईडी में भी, ऐसे ऐसे लोग हैं ना आपको गाइड करने के लिए, जो मतलब हाथ खोल के बैठे हैं यार, आप लोग गाइडेंस बनो, आप लोगों से ही ना एलुमनाई बनेगी कल हमारी। यस आपको सर। गाइडेंस की कमी नहीं है, और सर ने तो इतना प्लेटफॉर्म दे रखा है लोगों को कनेक्ट करने के लिए। बिल्कुल गौरव, Yes. 2019 में मोर देन 15 और 18 कैंडिडेट्स को मैं इंटरेक्ट करा चुका बच्चों से। जी सर। यस सर। देखो सर ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रखा है, तो सर को बोलोगे आपको गाइडेंस की लाइन लगवा देंगे सर। यस सर। एनी मोर क्वेश्चन प्रियंका? नो सर। ओके, थैंक यू प्रियंका। यदि आपको सर का नंबर चाहिए तो आई विल गिव यू। ओके, नेक्स्ट पुष्पेंद्र गोयल। पुष्पेंद्र गोयल, any question from Pushpender Goyal? Next, Saurabh Kumar. Any question, Saurabh? Any question, Shraddha? Shraddha Sone. Any question, Shraddha Sone? Next, Vijendra Prasad. Any question, Vijendra Prasad? Any question, Yakshraj Sharma? Yakshraj Sharma. Okay, thank you. Next, सर मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ, विजेंद्र पूछो। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे हम फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट नहीं लेते हैं और अपनी सर्विस जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखते हैं, तो उसके बाद भी अगर हम अपनी डिग्री लेके जाएं अच्छी सीजीपी के साथ, तो तब भी कंपनी हमें प्लेसमेंट देती है अच्छे पैकेजेस पर। देखो प्लेसमेंट आप कभी भी ले सकते हो, कॉलेज के +2 में 2 साल बाद तक प्लेसमेंट ले सकते हो। जस्ट लाइक आप जितना गैप देते जाते हो, इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट। इम्पॉसिबल नहीं होती चीजें, थोड़ा डिफिकल्ट होना शुरू हो जाती है। सर डिफिकल्ट क्या हो जाती है? हाँ जी, सर डिफिकल्ट क्या हो जाती है चीज़ें अगर हमें सब्जेक्ट? साइंस की जब आप कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट लेते हो, कि यहाँ क्या होता है, कंपनीज आपको आती है और लेके हायर करती चली जाती है। जब आप कॉलेज के बाद जाते हो तो आप कंपनीज के पास जाते हो। सीधी सी बात है कि कोई मुझे ऑप्शन दे रहा है कि भैया मैं क्या चूज करूं, उसके बाद क्या होता है, आप कंपनी को ऑप्शन देते हो कि वो हमें चूज करेगी ना करेगी। यस सर। विजेंद्र, एनी मोर क्वेश्चन? ये इम्पॉसिबल नहीं है। कॉलेज के बाद भी मैंने देखा है लोग 3-3-4 साल बाद, अच्छे कॉलेज के पास आउट की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी प्राइवेट कॉलेज, एनआईटीज आईआईटीज के बच्चों को कमी नहीं आती प्लेसमेंट्स की। थैंक यू हेलो सर। सर। हाँ विजेंद्र, एनी क्वेश्चन? हेलो सर। हाँ सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हेलो हाँ हाँ, बताइए। बोलो। सर, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो आरएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, ऑप्शनल आरएस नहीं होते, मतलब ऑप्शनल नहीं होते हैं सर, आरएस में नहीं होते हैं। तो सर इसको सब्जेक्ट को कैसे अरेंज करें? सब्जेक्ट को, हेलो, आप जिन बताइए सब्जेक्ट को क्या कह रहे हैं आप? सब्जेक्ट को कैसे मतलब तैयार करें, प्रिपेयर करें? अभी मैथ को भी हटा दिया गया है। अभी आप कौन सी ईयर में है? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में तो मैंने आपको बताया, पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना शुरू करें, और जब आप थॉरो हो नहीं, जाए जैसे इन चीज़ों में, आप एक हैबिट डेवलप कर पाएं, उसके बाद आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर आरएएस। आरएस में पूरी मतलब 8 सब्जेक्ट होती है पूरी, इसमें मैथ भी हटा दिया गया है प्रेजेंट में।
कोई बात नहीं यार, आप इंजीनियर हो, आपके सामने कोई ऐसे सब्जेक्ट आपको बोला जाए ना कि आरएएस में केवल एस्ट्रोलॉजी आती है, आप जब भी एक्सेल कर जाओगे, बिकॉज यू हैव द एप्टीट्यूड ऑफ दैट लेवल, बिकॉज यू आर इंजीनियर। ओके सर। आपको जरूरत नहीं है मैथ्स होने की ही केवल, आज की डेट में आरएएस में मैथ्स नहीं है, उसके बावजूद भी 50% से ज्यादा लोग इंजीनियर हैं आरएएस के अंदर। ओके सर। तो इंजीनियरिंग आपके अंदर वो एप्टीट्यूड ऑलरेडी ला चुकी होती है। थैंक यू विजेंद्र। अब मैंने भी कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हैं। तो सर एक्चुअली आई हैव वन क्वेश्चन। जी, व्हाट इज योर नेम? सर अभिषेक। अभिषेक, हाँ। सर IAS is better than RAS, then why you go for RAS? यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ आईएएस में, अपॉर्चुनिटी आई विल हैप्पीली गो फॉर आईएएस। But sir you cleared mains, तो I don't think it's difficult का आपको। मैंने ज्वाइन कर लिया था यहाँ पे आरएएस में, सो आई डिडंट प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू वेल। उसके बाद प्रीलिम्स भी दोबारा मैंने दिया तो तैयारी ढंग से हो नहीं पाई, मैं जॉब में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे। अब थोड़ा टाइम मिल रहा है तो आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस। यस सर, कोई बंदा मतलब IAS की तैयारी कर रहा हो, अगर उसको RS की एग्जाम देनी हो तो कितना मतलब राजस्थान कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना मतलब डेडिकेटेड राजस्थान में पढ़ना पड़ेगा? अगर आपको देखो सर्विसेज चाहिए, इफ यू वांट आरएएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और आरपीएस राजस्थान पुलिस सर्विसेज, देन यू हैव टू फोकस ऑन राजस्थान आल्सो। यस सर। आपको टाइम देना पड़ेगा, मतलब बिना आरएएस राजस्थान पढ़े आप मतलब सेलेक्ट तो हो जाओगे बट आप रैंक नहीं ला पाओगे। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू अभिषेक। तुहिना, एनी क्वेश्चन? तुहिना बेटा, तुहिना चटर्जी, एनी क्वेश्चन? तुहिना? No, sir. I heard to all my doubts. Like they are clear. Almost they are clear. Thank you, sir. Okay, thank you, Tuina. Some point I also noted here. I already told you in the year of 2017, our Gaurav Singhal is also selected same batch. I know more than 20 or 25 students from MNIT Jaipur. This is a proud moment for us. और एक कैंडिडेट तो ऐसे हैं कि आई थिंक 96 में पास आउट है, यानी उनके मन में कब से ये जुनून चल रहा होगा सिविल सर्विसेज का। कईयों ने पूछे कि आरएएस और आईएएस में, देखो दोनों चीजों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आरएएस का जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो भी आईएएस ही होता है, दोनों सेम रहते हैं, लेकिन प्रिपरेशन के हिसाब से अपन को दोनों का लिटिल बिट डिफरेंस है। यदि आप आरएएस की तैयारी करोगे और आईएएस की तैयारी करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन बोथ साइड, नो प्रॉब्लम। देन ये तो आपके डाउट होना ही नहीं चाहिए कि वर्किंग स्टाइल ऑफ आरएएस एंड आईएएस बोथ आर सेम। अब जो एक चीज ये और है कि आपको कई जो आई थिंक तुहिना, आई थिंक शी इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल आई थिंक। देन ये सबको सोचना है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, मे बी बिहार सर्विस कमीशन, मे बी यूपी, ऑल स्टेट्स आर हैविंग डिफरेंट बट बेसिकली रूल्स आर सेम। यदि आपको जो भी सर्विस कमीशन में जाना है, सपोज करो आरएएस है तो हम राजस्थान सर्विस पब्लिक कमीशन से आरएएस है, देन सबका सेम है। नेक्स्ट, अब मैंने जो नोट डाउन किया है उसमें यस्टरडे भी हमने डीआईजी किशन साय जी से डिस्कस किया था। तो फर्स्ट मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज ग्रुप स्टडी। यदि आप अकेले स्टडी करोगे तो मे बी बोर हो जाओगे, आप अपने आप को लगोगे कि यार मेरे से डिप्रेशन में हो रहा हूँ, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे, मेरे से मेहनत नहीं बन रही। तो आई विल आल्सो सजेस्ट ईच एंड एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करो, अपने फाइनल ईयर का देखो, फाइनल ईयर के आपके सीनियर से बात करो, जो भी हम प्रोजेक्ट इवोल्यूशन देते हैं, प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, वो भी अपन का ग्रुप में होता है, 3 और 4 स्टूडेंट के आसपास ग्रुप में होता है। तो ग्रुप स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। Yes, sir. जी, नेक्स्ट बिल्कुल गौरव जी ने एक बिल्कुल अच्छी बात कही है कि जो गरम खाना है उसका अलग ही स्वाद है। सपोज करो आप 4 साल एमएनआईटी में रहे हो, 4 साल एमएनआईटी में रह रहे हो,
तो उस 4 साल में आपने कितनी मेहनत की है। तो कई ऐसे स्टूडेंट है जो हमको रिजल्ट दे रहे हैं। अभी रिसेंटली 20 वाले इसमें गेट एग्जामिनेशन में फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक केमिकल डिपार्टमेंट से आई है। तो ऐसा सर एमएनआईटी को बहुत बहुत बधाई इस चीज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। ये चीजों से, और ऐसा नहीं है कि अभी आई है, 2017 में ऑलरेडी केमिकल डिपार्टमेंट से फर्स्ट रैंक आई है। तो मेरा कहने का मतलब है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर जब भी आप उसमें पढ़ रहे हो तो उसमें आपने क्या अचीवमेंट कर रहे हो। देखो गौरव जी ने बिल्कुल सारी बातें क्लियर कर दी आपको। उन्होंने आपके हॉस्टल डेज और कॉलेज डेज बिल्कुल सारा A to Z एक्सप्लेन किया है। मेरे हिसाब से आपको कहीं न कहीं एक पैरेलल मूवमेंट में जाने की जरूरत है। आपको एक पैरेलल मूवमेंट में चलाने की जरूरत है। सपोज करो यू आर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी और आरपीएससी और एनी सर्विस कमीशन, तो आपको वो पैरेलल रखना है। ऐसा नहीं कि आपने पूरा यूपीएससी के लिए कर दिया और इधर आपकी सीजीपीए 5 ही नहीं बन रही और इधर आप फेल हो रहे हो। मेरा कहने का मतलब है आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। अभी गौरव जी ने बताया कि मिनिमम जो परसेंटेज है वो 60% आपको मेंटेन करके रखनी है, अदरवाइज आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन को आपको अभी तैयार करनी है कि हमको कितनी सीजीपीए रखना है, कितना करना है। ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपकी जो 10th और 12th की परसेंटेज है वो कहीं भी आपकी काउंट नहीं होती है। कई बार ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे कि मेरा तो 10th में 43 परसेंटेज है। मैंने ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जिनकी राजस्थान बोर्ड से सपोज करो उनकी मेरिट आई है, वो कैंडिडेट आरपीएससी और यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुए। तो ये तो बिल्कुल आपके माइंड से डाउट ही निकाल दो कि परसेंटेज कोई मायने रखता है। कि हाँ, बीटेक का और आपका जो ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज वो थोड़ा सा इतना सा मायने रखता है कि आपका फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाओ। बाई चांस आपसे बोल दिया आपकी परसेंटेज बने 59 पॉइंट समथिंग, देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर यूपीएससी और आरपीएससी इफ परसेंटेज क्राइटेरिया इज देयर। देन अब आपने वो अनपैरेलल कर दिया, अनबैलेंस कर दिया। सपोज करो आपने उस टाइम पे यूपीएससी, आरपीएससी या कुछ प्लेसमेंट से रिलेटेड भी हम तैयारी करते हैं तो उस पर आप पूरा फोकस कर देते हो। तो मेरा कहने का मतलब है जो भी आपकी फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर, वो बराबर बैलेंस करके रखो। तो उससे जब भी हम फाइनल ईयर में जाएंगे, जब भी हम थर्ड ईयर में जाएंगे तो हमको उनके रिजल्ट आना लगेगा। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। मैंने कल भी बोला है, मैं आज भी बोल रहा हूँ, 24 आवर है, 24 into 60 मिनट है, into 60 सेकंड कर लो, 24 into 60 into 60। मेरे अकॉर्डिंग आप ईच एंड एवरी सेकंड्स को आप बिल्कुल खराब नहीं करें। आपका जो टाइम है, आज की जो सेकंड है, वो आपको कभी भी वापस नहीं आने वाली। तो आज का जो दिन है, आज का जो आपका आवर है, आपका आज का मिनट है, उसको आप कैलकुलेशन करो कि मैंने आज का जो 24 आवर है वो कैसे कैसे डिवाइड किया है। डिवाइड करना बहुत जरूरी है। तो उसमें आपका कब खाना खाया, कब आप सोए, कब आपने टीवी देखी, कब आप खेले, तो वो सारी चीज कवर हो जाएंगी। कब आपने फेसबुक चलाया, कब आपने व्हाट्सएप चलाया, ये भी आपका मेंशन होना चाहिए। नाउ सोशल मीडिया इज हैजार्डस लाइक दैट आतंकवाद, टेररिस्ट। कईयों में मैंने डिस्कस किया है तो कई लोग ये बोलते हैं कि हमारा जो सोशल मीडिया है आतंकवाद से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? वो इसलिए होता है कि हम, आप खुद कैलकुलेशन करके देखो, कैलकुलेशन करके देखते हैं तो उसमें ये लग रहा है 6 घंटे। फेसबुक पे आप देखा करो, व्हाट्सएप पे देखा करो कि हमने आज कितना टाइम कंज्यूम किया। उस पे आपका ओवरऑल जो चार्ट है वो बन के आ जाएगा, इस घंटे में आपने इतना यूज किया, इस घंटे में इतना यूज किया। तो मेरा कहने का मतलब है आपके जो 24 घंटे हैं, आपकी मिनट है, आपके जो सेकंड है, उनको आप अच्छे से 4 साल के पीरियड में आपने अच्छे से यूज किया तो डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। तो निवेदन ये है कि आपका जो घंटा है, मिनट है, जो सेकंड है, वो अच्छे से आप उसको यूटिलाइजेशन करो। नेक्स्ट मैं आपको बोल देता हूं कि अभी गौरव जी ने बोला है कि जब भी अपन बीटेक कर रहे होते हैं, एमएनआईटी में होते हैं, तो हमारे पास में जो कच्ची बस्ती है, आउटसाइड जो कैंपस है उसमें जो कच्ची बस्ती है, अभी मेरे टच में है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट है मोहित चौधरी, वो बिल्कुल वहां जाके गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। उसके साथ में उसके जूनियर हैं, उन लोगों की एक टीम बनी हुई है, बाकायदा वो काम कर रहे हैं। तो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। आप जब तक वो चीज जानोगे ही नहीं, जब तक आप उन गरीबों का दुख जानोगे ही नहीं, तब तक आपके माइंड में आ ही नहीं सकता कि मैं कैसे सिविल सर्वेंट बनूं, कैसे मैं सिविल सर्विसेज करूं। और कल डीआईजी किशन साय जी ने भी आपको बताया था कि आप जॉब के लिए प्रिपरेशन कर लेते हो कि मेरे को आईएएस बनना है, आरएएस बनना है, इंजीनियर बनना है, वो बनना है। आप ये भी चीज रखो कि एक सिविल सर्विसेज जो हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं,
जनता के बीच में सेवा करना चाहते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन है लीडरशिप। पॉलिटिकल भी सोचो आप भाई, पॉलिटिकल भी सोचो। ऐसा नहीं कि आप सपोज करो आपने 4 साल या 10 ईयर्स उस फील्ड में लगाई है, तो आप उनका बेटर कर सकते हो। सपोज करो अरविंद केजरीवाल जी हैं सीएम दिल्ली, तो वो कुछ आईआईटी खड़गपुर, ही आल्सो पास आउट फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, तो आईआईटी खड़गपुर के जो पास आउट है, वो आईआईटी खड़गपुर का जो एक्सपीरियंस है उसको वो वहां शेयर कर रहे हैं। तो आप भी एमआईटी से पास आउट हो, आप एमआईटी से पास आउट होके ऐसा नहीं है कि अपन एक लीडरशिप पॉलिटिकल वे में आप उसको यूटिलाइजेशन करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग, आप इंजीनियर हो, आप सिविल सर्वेंट हो, तो कहीं भी आप उसको यूटिलाइजेशन कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि यदि मेरा प्लान बना तो 2018 यूपीएससी टॉपर टीना ढाबी, शी इज आल्सो इन माय कांटेक्ट, तो आई विल रिक्वेस्ट माय टेक कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर रोहित वाकर जी, he will also suggest, then you can also join, then definitely I will this platform I will interact with Tina Dhabi. She is also topper in 2018 UPSC, as well as in the year of 2019 Kanishk Kataria is also topper. Then all two candidates are serving his services in Rajasthan, then definitely they will join with us. Then you can connect with me. फर्स्ट, अभी एक कैंडिडेट ने बोला है कि कई कैंडिडेट है जो फर्स्ट ईयर में है, अपने साथ सेकंड ईयर वाले भी जुड़े हुए हैं, थर्ड ईयर वाले भी जुड़े हुए हैं, फाइनल ईयर। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से यह है कि आप आपके फादर का ऑक्यूपेशन देखो, आपके फादर की कंडीशन देखो कि आपके फादर की कंडीशन क्या बोलती है, तो वो आपको प्रिपरेशन के लिए सजेस्ट करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि सपोज करो आपके फादर फार्मर है, अपन में से कईयों के फादर फार्मर है, तो वो अपन को सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप यूपीएससी की तैयारी करो या आरपीएससी की तैयारी करो, सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि अपन ने मेहनत नहीं की, दोनों एग्जामिनेशन टेकिंग मोर एंड मोर टाइम्स, मिनिमम 1 ईयर और मोर ईयर का कुछ वो नहीं है, ज्यादा साल का कुछ फिक्स नहीं है। मैंने ऐसे भी कैंडिडेट देखे हुए जो 8 साल में सेलेक्ट हुए हैं, 7 साल में सेलेक्ट हुए हैं, 5 साल में सेलेक्ट हुए हैं। ऐसे कैंडिडेट में है कि 35 में 6 मंथ उनका ओवर एज घट रहा था, 6 मंथ। वो आल्सो आपके दैनिक्स में मेरे कांटेक्ट में है, वो अभी सेलेक्टेड हुए हैं, शिव सिंह करके हैं। तो ऐसे कैंडिडेट हमको ऐसे बिल्कुल नहीं लेना है। तो हमको तो यह है कि आपके इकोनॉमिक कंडीशन में उसमें ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि अपन सिविल सर्विसेज के पथ पे निकल जाए, रास्ते पे निकल जाए। सपोज करो अपन को पहली साल में सफलता नहीं मिले, दूसरी साल में सफलता नहीं मिले, लेकिन आप अच्छे से मेहनत करोगे, आपके हर दिन को आप अच्छे से यूटिलाइजेशन करोगे, तो डेफिनेटली इसका तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 1 साल में नहीं तो 2 और 3 साल में तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। तो इस चीज को आप देखो कि आपके फादर टीचर है, वो आपको इतने साल सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। भाई अपना जो एम है आप खुद फिक्स मत करो, आपके पेरेंट्स से आप डिस्कस करो कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, तो वो आप उनसे डिस्कस करके इस फील्ड में आई थिंक ज्यादा से ज्यादा आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने पूरे सेशन में प्रोफेसर रोहित वाकर जी भी जुड़े हुए हैं, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सर आपका फीडबैक यदि बताएं। और आप गौरव सिंघल के गुरु भी रहे हो, आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हो। रोहित वाकर जी। नमस्कार सर। प्रोफेसर रोहित वाकर जी। चलो सर बिजी होंगे आज। गौरव, एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स? अभी अपने पास टाइम है। अभिषेक, यस सर, 2 मिनट्स का टाइम है बेटा, आपका कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। सर एक्चुअली हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो करें, लेकिन सर मतलब ऐसे पता कैसे करें कि हम सही लिख रहे हैं या प्रॉपर नहीं लिख रहे? सो सर उसके लिए हेल्प मिल सकती है सर आपसे? आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज एक वेबसाइट भी है इनसाइट्स ऑन इंडिया, वहाँ पे आप अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं। एंड वहाँ पे अब आंसर राइटिंग के लिए एक अलग से वो है, क्या बोलते हैं उसको, एक पोर्टल है, एंड पीपल आर देयर टू इवैल्यूएट योर आंसर आल्सो। वहाँ पे आपको लोग मिल जाएंगे जो आपका आंसर से इवैल्यूएट करेंगे। ओके सर, इनसाइट्स ऑन आईएएस। यस सर। थैंक यू पार्टिसिपेंट्स।
आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट होते हुए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि नेक्स्ट जब भी अपन इंटरेक्ट हो, टेक्यूब की वेबसाइट से आपके पास मेल मिले तो मोर एंड मोर स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट। जो आपका इंफॉर्मेशन है, बड़ी मुश्किल से इनकी ड्यूटी लगी हुई है, धौलपुर में ड्यूटी लगी हुई है गौरव जी की, कोरोना का टाइम लग रहा है और वो आपके लिए 1 आवर और 1.5 आवर आपके लिए निकाल रहे हैं, तो ये अपने लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो अपन को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करनी है। सबके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, हर डिपार्टमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, हर ईयर के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। तो जो भी जब भी मैं लिंक भेजता हूँ आप लोगों को, तो वो लिंक आप उस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे सर्कुलेट किया करें। अभी ज्यादातर स्टूडेंट फ्री हैं, यदि अपन बिजी है तो ऑनलाइन क्लासेज में और ऑनलाइन टीचिंग में बिजी हैं। तो जब भी आप फ्री रहते हो तो वो आप टाइम मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, सर इस टाइम हम फ्री नहीं है। तो जब भी मेरा कोई लिंक आए, टेक्यूब से कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट आए, तो आप उसमें आप मोर एंड मोर स्टूडेंट को कनेक्ट करने के लिए सजेस्ट करें। थैंक यू पार्टिसिपेंट, और थैंक यू गौरव सिंघल जी, आपने बहुत बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे साथ एमएनआईटी की यादें ताजा की, और ऐसे ही आप भविष्य में बना रहे। और आपके जितने भी साथी हैं अपने एमएनआईटी से, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उनका भी एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना ले कि एमएनआईटी हमारा है, एंड वी आर अराउंड 30 people. हाउ मेनी कैंडिडेट्स? 36 सर। वेरी गुड। तो ये अच्छी है। जब मैं 2012 में आया था तो मेरा पॉइंट ये था, गौरव जी मैं बता देता हूँ, मेरा खुद का प्लान था सिविल सर्विसेज का, मैंने दिल्ली में रह के तैयारी भी की थी। प्रोफेसर रोहित वाकर जी की तरफ से मैसेज आया, थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैं शेयर कर देता हूँ सर के लिए, सर बिजी हैं, काफी बिजी रहते हैं। तो मेरा ये है कि जब मैं 2012 में आया था तो मेरा एक टारगेट था कि मैं तो नहीं बन पाया, पर मेरे स्टूडेंट को मैं कैसे इसमें देखूं। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा एक स्टूडेंट 2-3 स्टूडेंट तो आईएफएस है, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, मोर देन 10 स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग सर्विसेज में और इंजीनियर्स हैं। तो एक अच्छी खुशी की बात है, एक टीचर को बहुत खुशी मिलती है सर, अपने कॉलेज के लोग मतलब सरकार में इतने ऊंचे पदों पे पहुंचे, उनको देख के बहुत खुशी मिलती है सर। और आप तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी जर्नी में सर। बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट टू यू सर। थैंक यू गौरव। नेक्स्ट जब भी मैं कॉल करूं, आपको कॉल मैसेज करूं, तो डेफिनेटली आप भी प्रेजेंट रहें तो अच्छा है आपको। आई थिंक दिस इज योर सेकंड और थर्ड टाइम, मैंने आपको दूसरी या तीसरी बार परेशान किया है। बिल्कुल। अरे सर परेशान नहीं सर, ये तो मेरा इट्स माय ऑनर। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।